اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آج اس امپورٹڈ حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، المیے کا مقام ہے، سوچ کا مقام ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، رجیم چینج کے بعد حالات کہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ آج امریکہ نے اپنی زبان کھول دی ہے ہمارے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے۔ جو بائیڈن نے بہت بڑا بیان دیا ہے اور پاکستان کو خطرناک ملکوں میں شامل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے بے ربط ہیں۔ یہ اتنا بڑا بیان ہے، یہ اتنا بڑا بیان ہے کہ اس پر فل فور پاکستان کا ریاکشن آنا چاہیے تھا بھرپور انداز سے، لیکن وہ انداز پتہ نہیں کہیں گم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تو چلتے ہی ان کی مرضی کے مطابق ہیں، کیونکہ لے کر ہی وہ آئے ہیں، انہی کے منصوبے انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ صرف ہوا کیا کہ دفتر خارجہ کے سینئر افسر نے ایک چھوٹا سا بیان داغ دیا۔ وزیر خارجہ تو بیچارے شاید ابھی کہیں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ وفاقی وزیر غلام دستگیر نے کہا کہ ہمارے ایٹمی اثاثے قطعی طور پر محفوظ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اثاثے محفوظ ہیں، اور کتنے جو ہیں سابقہ امریکہ کے صدور اس حوالے سے بیانات دے چکے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، جبکہ بھارت کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہیں۔ وہاں کے ایٹمی پلانٹ میں دھماکے، وہاں پر ایٹمی پلانٹ کے گیس کا اخراج ہونا، وہاں پر ایٹمی پلانٹ میں حادثات پیش ہونا، یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہمارے دشمن ملک بھارت کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہیں، مگر امریکہ نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ جو بائیڈن نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ البتہ اپوزیشن کی جانب سے فواد چودھری نے کہا ہے، انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے تو محفوظ ہیں، محفوظ اور مضبوط ہیں، البتہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کمزور ہیں، وہ ویک ہیں۔ فواد چودھری کی اس بات سے 100% اتفاق کیا جاتا ہے کہ عوام مضبوط ہیں اور حکمران کمزور ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا بیان ہے۔ ان کو سوچنا ہوگا کہ جن کی جھولی میں جا کر بیٹھ رہے ہیں آج وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ امریکی صدر جو بائیڈن، جو پاکستان سے افغانستان سے اپنی افواج کو نکالنے کے لیے پاکستان کی مدد کا مطلوب تھا، آج وہ پاکستان ہی کو ہدف تنقید بنا رہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے تعلقات کو دوبارہ سے اثر نو رینیو کرنا ہوگا۔ اس نے چین اور روس کے ساتھ پاکستان کو بھی بلا وجہ رگڑا ہے، اور اس بیان کا اس وقت دینا کوئی وجہ نہیں بنتی، کوئی منطق نہیں بنتی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر پاکستان کا رجحان جو ہے وہ چین کی طرف تو ہے ہی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ چین ہمارا بہت اچھا اور بہت پیارا اور بہت بڑا اور بہت گہرا اور بہت وفادار دوست ہے، البتہ اب جو پاکستان کا جھکاؤ روس کی طرف جا رہا ہے، اس وجہ سے امریکہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی لیے اس نے خواہ مخواہ پاکستان کو ہدف تنقید بنایا ہے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے۔ اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ صرف ہمارے ایٹمی اثاثے ہی محفوظ نہیں، ہماری پاک فوج بھی انتہائی پیشہ ورانہ ہے، اور وہ ملک کی حفاظت اور اپنی اثاثوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ یہ دشمن کا وہم ہوگا، خام خیالی ہوگی کہ اس طرح کے بیانات دے کر پاکستانی قوم کا اور اداروں کا جو ہے وہ مورال ڈاؤن کر سکے۔ امریکہ خود محفوظ نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کی تمام ریاستوں میں ہزاروں افراد قتل ہو جاتے ہیں، غیر قانونی اسلحہ ہوتا ہے، وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرا تیسرا دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہاں پر فائرنگ نہ ہو۔ وہاں کے سکول یونیورسٹیاں غیر محفوظ ہیں، وہاں پر قتل و غارت گری ہوتی ہے، وہاں پر کبھی کسی ہجوم پر گاڑی چڑھا دی جاتی ہے، کبھی چاقو سے حملے کیے جاتے ہیں، کبھی اغوا کیا جاتا ہے، کبھی لوٹ مار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں جب بھی رات گئے نکلا جائے تو وہاں پر 10 20 $50 جیب میں رکھے ہونے چاہیے، کیونکہ کالے جو ہیں، جو حبشی ہیں، وہ قتل کر
देते हैं अगर आपके पास से कोई माल दौलत ना निकले, नहीं तो $20-50 लेकर छोड़ देते हैं। जो बाइडन असल आप लोग अमेरिका पर काबिज है, असल मालिक तो काले थे, असल मालिक तो काले थे, कालों ने ही दरियाफ्त किया और कालों के ऊपर आप लोग ओवरकम कर गए। वहां पर आप देख लें आपके यहां खुद किसने नस्ली फसादात हैं। आपको याद होगा कि जब एक काले को एक पुलिस वाले ने घुटने के नीचे देकर मार दिया था, पूरी दुनिया चीख उठी थी, दुनिया देख रही थी, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी जो वीडियो थी कि उसे किस तरह सांस घोटकर मारा गया, मगर अपने मसाइल को दबा लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अब ये आईटी का सोशल मीडिया का जदीद तरीन दौर है। जो बाइडन के ऐसे लतीफे छोड़ने का कोई वजन नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन हमारे मुल्क को, हमारे वजीर खारजा को, हमारे दफ्तर खारजा को एक ठोस और मजबूत और सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा इसका जवाब देने के लिए कि वो कौन होता है हमारे एटमी असासों के हवाले से बयानात देने वाला। पहले अमेरिका या जो बाइडन अपने गिरेबान में झांकें, अपने मुल्क के अंदर देखें। जब अमेरिका ने पूरी दुनिया में कत्लो गारत गरी मचाई हुई है, कभी कुवैत, कभी इराक, कभी अफगानिस्तान, कभी चेचनिया, कभी बोस्निया, कभी कोई मुस्लिम ममालिक, कभी अपने मुल्क के अंदर झांका है, कभी अपने गिरेबान के अंदर झांका है कि वहां क्या हो रहा है। जो दूसरे मुल्कों के अंदर अनारकी फैलाते हैं, जंगो जदल करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे इत्तेहादी बन जाएं। क्यों इत्तेहादी बन जाएं? आज जो रजीम चेंज वाले हैं, इंपोर्टेड हुकूमत, वो कहते हैं कि हम इत्तेहादी है। इमरान खान का क्या स्टांस था? वो यही स्टांस था कि हम किसी की जंग में या हम किसी की दहशतगर्दी की जंग में हम शामिल नहीं होंगे। हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे। शायद यही चीज उन्हें पसंद ना आई और इस वजह से रजीम चेंज हुआ और इंपोर्टेड हुकूमत को ला बिठाया। अब 16 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कप्तान की क्या बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, उसने जलसा किया जाके शहर कायद में। जी हां, पीपल्स पार्टी ये सोच रही थी कि शायद अब वो मजबूत हो गई है, उसे अवाम चाहने लगी है, लेकिन वहां तो ऐसे लगा कि इंसानों का एक समंदर उमड़ आया है। शहर कायद में सर ही सर थे इंसानों के और कप्तान का धुआंधार अग्रेसिव खिताब था। उसने शहर कायद के वासियों से पूछा कि आपको जरदारी ने क्या दिया है, आज तक कौन से मसाइल हल किए हैं। ज़िमनी इंतखाबात से पहले इमरान खान के जलसे ने हुकूमत के ताबूत में कतई तौर पर कील ठोक दी है और ज़िमनी इंतखाबात में अपनी फतह का झंडा लहरा दिया है कि वो फातेह है। उस जलसे ने साबित कर दिया है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, वो इमरान खान के साथ चल रही है, वो पीटीआई के साथ है। गो के इमरान खान उम्मीदवार हैं जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें से बहुत ज्यादा मुमकिन है कि वो इलेक्शन जीतने के बाद जो है उसमें से सीटों से इस्तीफा भी दे देंगे। जाहिर है एक ही नशिस्त रखी जाएगी उनके पास। लेकिन अब हुकूमत की जो है कराची के जलसे के बाद नींदें हराम हो चुकी हैं, उड़ चुकी हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। कभी बारिशों का बहाना बनाया, कभी सैलाब का बहाना बनाया, कभी किसी तरह का बहाना बनाया, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल ना हुई और बादल नाख्वास्ता अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसीलिए इमरान खान ने कराची के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि यह ज़िमनी इलेक्शन नहीं, मुल्क में इस इंपोर्टेड रजीम के खिलाफ जो है यह रेफरेंडम है। जी हां, अवाम फैसला देगी और अवाम इस वक्त कतई तौर पर पीटीआई के हक में है। जो भी रिपोर्टें मिली हैं, जो भी हुकूमत को अभी तक रिपोर्ट पेश की गई हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि इमरान खान और पीटीआई का ग्राफ जो है 110% ऊपर जा रहा है। इस हुकूमत ने 3 से 4 महीने में मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। इंतहाई बर्बादी तो यहां तक है कि एटमी असासों के हवाले से भी दुनिया भर में सवालात उठने शुरू हो गए हैं। महंगाई बेकाबू हो चुकी है। इन्होंने हत्ता के ये हुआ कि अवाम की जानिब से इतनी नफरत का इजहार किया गया कि इन्होंने अपने जलसे जुलूसी करना बंद कर दिए, अवाम में जाना बंद कर दिया, नमाज ईद ऐसे मसाजिद में पढ़ना बंद कर दी जहां पर अवाम आती थी।
पब्लिक मुकामात पर जाना बंद कर दिया, बैरून मुल्क जाने के लिए महदूद हो गए कि फौरन निकले और फौरन अपने मुकाम पर पहुंच जाए। मक्का मदीना में आपको याद होगा कि इनके खिलाफ कैसे नारेबाजी लगी, कैसे लोगों ने चोर चोर कहा। आए दिन नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के खिलाफ, मेफेयर फ्लैट्स के खिलाफ, लंदन में जिसको मरियम नवाज कहती थे मेरे नहीं है, मेरी तो पाकिस्तान क्या लंदन में कहां से जायदाद आई, और उसके बाद उनके भाई ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेफेयर फ्लैट्स हमारे हैं और मरियम नवाज इसकी देखभाल करती हैं। वहां पर उन फ्लैट के खिलाफ, इनके खिलाफ आए दिन मुजाहिरे होते हैं। फिर आप देखें मरियम औरंगजेब जब बाहर गई, वहां उसके खिलाफ कैसे चोर चोर के नारे लगे। और अभी रिसेंटली इसहाक डार जब बाहर गया, अमेरिका गया, तो वहां पर भी उसे चोर चोर के नारे गए। ये जुबान खल्क है। आप मुल्क क्या, आप पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो गैर महफूज हैं। जहां जाते हैं आपके खिलाफ हर्जा सराई होती है। अवाम में आ जाएं, अवाम तो शायद जूतों का हार पहनाने के लिए तैयार है, तो आपके ज़िमनी इंतखाबात में जीत तो दिल्ली दूरस बहुत नामुमकिन है। फिर नवाज शरीफ भी आने से रुक गए हैं। अगर ये ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन आ जाते हैं और इमरान खान वाज़े तौर पर क्लीन स्वीप करते हैं, तो नवाज शरीफ कतई तौर पर पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि हालात इस काबिल नहीं है कि नवाज शरीफ आएंगे तो जेल यात्रा की जाएगी। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, ये जो मर्जी कर लें, बेईमानी कर लें, जाली वोट डाल लें, जैसे भी कर लें, लेकिन अगर पीटीआई के टाइगर्स ने अपने वोटों पर पहरा दिया, अपने वोटों की देखभाल की और नौजवान घरों से बाहर आए, अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, तो कतई तौर पर कोई दूसरी राय नहीं कि जीत जो है वो पीटीआई की होगी। इसीलिए कप्तान ने कहा है कि ये रेफरेंडम है, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। कौम को इस वक्त पर जो है कल जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन्हें बाहर निकलना होगा, अपना फैसला देना होगा, इंपोर्टेड हुकूमत को बताना होगा कि सही रास्ता कौन है, हमारी सही चॉइस कौन है, हमारा लीडर कौन है, हमारा रहनुमा कौन है, हमारे मुल्क को आगे कौन लेके जा सकता है, हमारे मुल्क को कौन तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है, हमारे मुल्क के एटमी असासे किसके हाथों महफूज रह सकते हैं, कौन महंगाई को काबू कर सकता है, कौन अमेरिका और इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, कौन सा ऐसा लीडर है मुल्क में जिसके पीछे अवाम चलना चाहती है, उसको आज फैसला करना होगा। ये है आज फैसले का दिन है। अगर आपने फैसले में जरा ले तो लाल की, तो आपकी नस्लें जो हैं वो इस इंपोर्टेड हुकूमत की नस्लों के गुलाम ही रहेंगी। आपने तरक्की करनी है, आपने मुल्क को आजाद, हकीकी आजादी दिलानी है, आपने अपने पैरों पर खड़ा होना है, आपने दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करनी है, आपने मुल्क की नजरियाती सरहदों को मुस्तहकम करना है, आपने महंगाई को खत्म करना है, आपने तरक्की के जीने चढ़ने हैं, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपने अपने कारखाने फैक्ट्रियां जो है वो ओपन करनी है, आपने दुनिया भर से तिजारत जो है वो बढ़ानी है, अपने अपने दोस्तों का हल्का जो है वो मजीद जो है वो हल्का अहबाब को जो है वो ओपन करना है, आपने रूस से अपने दोस्ती के हाथ बढ़ाने हैं, आपने अवाम को सस्ता पेट्रोल देना है, आपने अवाम को सस्ती गंदम देनी है, आपने अवाम को सस्ती बिजली देनी है, आपने महंगाई को कंट्रोल करना है, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें नीचे लानी है, आपने सेहत की सहूलियात देनी है, आपने ट्रांसपोर्ट की सहूलियात देनी है, आपने सड़कों का जाल बिछाना है, आपने तालीम का निजाम बेहतरीन करना है। तो इसके लिए इस वक्त कौम के पास एक ही चॉइस है और वो है इमरान खान। इमरान खान के हक में आप वोट देंगे, उसे आगे लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। और कप्तान के लिए भी हमारा एक ये बात है, हमारी एक राय है कि वो जैसे चल रहे हैं वो देख रहे हैं, एक अफवाह ये चल पड़ी है कि अगर वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे तो कोई और ऐसी कुव्वत जो है वो फायदा ना उठा ले, मगर ये देख ले आप, अगर उस कुव्वत के चक्कर में रहते हैं तो दूसरी जानिब से भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जितने मामलात को
मैनिपुलेट कर रहे हैं, उतने ही हालात जो हैं आपके काबू से बाहर निकलते जा रहे हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात आपको फैसला करने की राह दिखाएंगे। ये ज़िमनी इंतखाबात आपको बताएंगे कि इलेक्शन कब होना चाहिए। ये ज़िमनी इंतखाबात आपको बताएंगे कि अवाम किसके साथ है। ये ज़िमनी इंतखाबात आपको बताएंगे कि वोट किसके साथ है। ये ज़िमनी इंतखाबात आपको बताएंगे कि क्या इस इंपोर्टेड हुकूमत को मजीद हुक्मरानी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये ज़िमनी इंतखाबात इस मुल्क की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। लिहाजा अवाम निकले और अपने फैसलों पर मोहर सब्त करे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना